وہ جلدی جلدی کام کر رہا تھا۔ اس نے عرفان دورانی کا کیس فائر کر دیا تھا۔ اس نے کاغذی کارروائی کر کے نوٹس ایک سپاہی کے تھرو جیل میں ہی بھجوا دیے۔ اب بس وہ اس کے نوٹس ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عرفان دورانی کے وکیل سے بھی ملا۔ اس کا وکیل کافی خرانٹ ٹائپ کا تھا۔ روشنال جانتا تھا وہ اس کے لیے فائل تیار کر رہا ہے۔ آج اشنال کا لاسٹ پیپر تھا۔ پیپر ایوننگ ٹائم تھا۔ وہ روشنال کو پیپر دلوانے خود لے جاتا۔ جب تک وہ پیپر کر نہیں لیتی تب تک گاڑی میں اس کا انتظار کرتا۔ وہ اس لیے جلدی جلدی کام کر رہا تھا کیونکہ سینٹر کافی دور تھا تو اس کو آفس جلدی نکلنا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے کام کر رہا تھا جب پاکٹ میں پڑا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے فون نکالا تو بابا کا نام لکھا جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسا ہے میرا شیر پتر؟ دوسری جانب سے بابا کی زندگی سے بھرپور بھاری آواز جگمگاتی آئی تھی۔ وعلیکم السلام بابا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی، خالہ، بابا اور آغا جان سب ٹھیک ہیں؟ کیا سناؤں، آغا جان تمہاری اور اشنال کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس نے بابا کی آواز میں صاف پریشانی محسوس کی۔ کیوں، اب کیا ہے؟ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہو تو گیا، اب وہ اور کیا چاہتے ہیں کہ میں اب اشنال کو لے کر اس ملک سے ہی نکل جاؤں؟ یہ بات کہتے اس کے وجیح کشادہ چہرے پر غصہ اور اس کے لہجے میں تلخی خود بخود دوہرائی تھی، کیونکہ اسے اشنال پر کیے گئے ظلم و ستم یاد آ رہے تھے۔ وہ یہ بات مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا کہ آغا جان نے اس کی اور اس کی معصوم بیوی کی تذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہیں اتنا غصہ جچتا نہیں ہے میرے شیر نوجوان بیٹے پر۔ میرا شیر بیٹا دھیمے لہجے کا مالک ہے۔ تمہارے آغا جان کا حکم نہیں، ان کی ریکویسٹ ہے کہ تم وقت ولا واپس آ جاؤ۔ وہ دن بدن تمہاری فکر میں کمزور ہو رہے ہیں، ہر روز تمہارا اور اپنے بیٹے کی معصوم نشانی کا پوچھتے ہیں۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ٹھنڈا کرتے بولے، بابا جان، آپ کے لہجوں نے، آپ کی بے اعتباری نے مجھے ایسا کر دیا ہے، ورنہ میں کب چاہتا تھا کہ میں ایسا ہوں۔ اور جہاں تک رہی آغا جان کی بات، تو اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس وقت کہاں تھی ان کے بیٹے کی معصوم نشانی جب اسے گھر سے دربدر کیا تھا؟ اتنا تو سوچ لیتے کہ وہ ان کا خون تھا، پر نہیں، ان کو تو اپنی ناک پسند تھی نا جو کھڑی رہے سب کے سامنے۔ ان کو کسی کے احساسات سے کیوں پرواہ کرتے وہ کسی کی؟ پر بابا اب ان کو بتا دیجیے گا، میں بھی انہی کا خون ہوں، انام مجھ میں بھی ان جیسی ہی ہے۔ آغا جان نے شاید یہ سمجھا تھا کہ مجھے گھر سے دربدر کر کے اور جائیداد سے آگ کر کے دھمکی دیں گے تو میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ آغا جان کو بتا دیجیے گا کہ ان کی انا کا مارا یہ پوتا شاید کنگال بھی ہو گیا نا تو اس کے ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ اپنی بیوی کو محنت مزدوری کر کے روٹی کھلا لے۔ اس کی معصوم ضد اور بیجا خواہشیں پوری کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ ان کے در پر جھکنے نہیں آئے گا کبھی۔ اس کا انداز لٹ مارتا اور بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ بیٹا جی، یہ تمہیں وقت آنے پر سمجھ آئے گی کہ میرا یہ سخت لہجہ اور میری یہ بے اعتباری تمہارے لیے کتنی مفید تھی۔ میں اتنا آنکھوں کا اندھا اور کانوں کا کچا ہرگز نہیں تھا کہ تمہاری یہ بے قراری نہ دیکھ سکتا، ورنہ کوئی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کرتا کہ اپنا زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایک معصوم بچی کے لیے نہ کر سکے۔ وہ اشنال کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہہ گئے تھے اور مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا، میرا یہ بیٹا اتنا تعلیم یافتہ اور مہذب ہو کر اپنے بوڑھے دادا کو اپنی جھوٹی انا کے چکر میں جھکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، غرور اور انا انسان میں تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر طاقت ہو، اور جب انسان کمزور ہو جائے نا، وہ انا اور غرور مرنے لگتا ہے۔ جیسے آغا جان کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ سچ میں غمگین ہوئے، کیونکہ جب وہ آغا جان کے سامنے روشنال اور اشنال کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں میں نمی بھر آتی تھی۔ بابا پلیز، میں بے غیرت نہیں ہوں، سچ میں مجھے آپ اور آغا جان کے اس عمل پر بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس دن میں آپ سب کی نظروں میں ہی نہیں، خود اپنی نظروں میں بھی گر گیا تھا۔ مجھے پتا ہے آغا جان نے بہت نفرت اور غرور میں غلط الفاظ کہے تھے۔ یہ دنیا ہے صاحبزادے، ادھر ہر کوئی دوسرے کا قصوروار ہے۔ ہمارا کوئی مجرم ہے تو ہم کسی کے مجرم ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈنے لگ جائیں نا تو ہمیں ہر کوئی برا لگے۔ پتا ہے، جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ہم اس کی خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، اس کی ذات میں سے کیڑے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس میں 100 میں سے 99 خوبیاں ہوں نا تو ہم ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک خامی کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس ایک خامی کو پکڑ کر اس کو کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں، اور اس میں سے وہ خامی بھی کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں جو شاید اس کو خود نہیں پتا ہوتی۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا شیر جوان، اگر ہم کسی سے انسیت رکھیں، اسے توجہ اور پیار دیں، تو ہم اس کی 99 خامیوں کو چھوڑ کر اس کی 100ویں والی
100 नंबर वाली खूबी ढूंढ कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपनी अना के जोम में दूसरों को बस तोड़ रहे होते हैं, बखेर रहे होते हैं। तभी हम खुद को सही कहते हैं। वो उसे समझा रहे थे। बाबा पुत्र, बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है कि वो जब कभी नरमी और गुस्से के मूड में होते तो फिर वो पंजाबी शेर सुनाते, बेटों को समझाने के लिए, बेटों को समझाने और गाइड करने के लिए। और उनके इस अमल से वो दोनों भाई काफ़ी हद तक इंस्पायर भी होते। फुੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਤਰ ਬਣਾ, ਇਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਮਛਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ, ਫੇਰ ਵੀ तेरी बू नहीं मुकदी, पहले अपनी मैं मुका। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं, हम तुम्हारे पास आए। तुम्हारी माँ अशनाल से मिलने को बेकरार है। मैं तो पहले भी काफ़ी हद तक रोक चुका हूँ, लेकिन वो भली मानस अब रोज़ ज़िद पकड़ती है कि मैं अपने बेटे और बहू से मिलने जाना चाहती हूँ। मैं अब मज़ीद बहाने नहीं कर सकता हूँ। वो तेज़ लहजे में बात करते नर्म हुए। बाबा आज बस अम्मी को रोक लें, अशनाल का आज लास्ट पेपर है। आपको उस शेर जवान की कसम किसी को नहीं बताना, मैं अशनाल को खुद लेकर आऊँगा। ये सरप्राइज़ मेरा सरप्राइज़ रखिएगा। वो बाबा की इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर पल में अपनी अना का बुत तोड़ गया और उनसे वादा लेता उनका दिल खुश कर गया था। तो तुम्हारा राज राज रहेगा शेर जवान, मेरा मान रखने का शुक्रिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बेटे हो, गरूर हो मेरा। इसलिए तो मुझे अपने इस शेर जवान पर फ़ख्र है कि वो मेरा मान रखना जानता है। वो बाप थे, बेटे की कमज़ोरी जानते थे। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख गए थे और वो भी पुरसकून हुआ था। बाबा के लफ्ज़ों से वो खुद तो मुतमईन हो गया, लेकिन अब उसने अशनाल को मनाना था और उसे मनाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। वो घर आया तो वो कहीं नहीं थी। उसने तो समझा था कि वो तैयार हो गई होगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तशवीश हुई, वो कहीं नज़र नहीं आई थी। उसने 2-3 दफ़ा पुकारा, अशनाल अशनाल। अब की बार बुलंद आवाज़ में पुकारा ताकि वो जहाँ कहीं भी हो निकल आए बाहर, लेकिन वो नहीं आई थी। वो उसके रूम की तरफ आया, एक बार दस्तक दी, फिर दी। कोई जवाब ना पाकर दरवाज़ा खुलता अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ है? उसे रूम के फर्श पर बच्चों की तरह बैठा रोता देख वो परेशान हुआ। जो बाजू घुटने पर रख के सिसक रही थी, उसे तशवीश हुई। वो उसके पास जाकर बैठा। घर में से तो किसी का फ़ोन नहीं आया, या फिर तबीयत ख़राब है? कोई आया था क्या? वो खदशे के तहत एक ही सांस में कितने सवाल पूछ गया, जबकि दूसरी तरफ वो वैसे रोए जा रही थी। वो उसके एकदम बैठने से डरकर पीछे हुई। तबीयत ख़राब है मेरी, वो ये कहते दिल में सिसकी। तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं, मुझे पता है मोहतरमा झूठ बोल रही हैं। वो होले से नर्म लहजे में बोला। उसका लहजा अपनायत आमेज़ और बहुत ज़्यादा नर्म था। ऐसा लहजा जिससे अशनाल बग की दूर दूर तक आशनाई नहीं थी, मगर कभी वो उसके इस लहजे की ख्वाहिशमंद ज़रूर थी। सच बताओ, क्या हुआ है? वो भारी गंभीर नर्म लहजे में बोला। वो बहुत तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला था, जो गुलाबी जोड़े में हमरंग दुपट्टा पहने, बालों की आवारा लटें उसके सदी चेहरे पर रक्स कर रही थी। हाँ, अलबत्ता उसके सर पर दुपट्टा नहीं था, रोने की वजह से हल्का सा सरक चुका था। उसके इतने नर्म लहजे, उसकी नज़रों की चमक पर वो सर झुका गई। वो उसको इतना ज़्यादा कबूल नहीं कर पा रही थी। अशनाल की रंगत में घुलती सुर्खी, उसके कटावदार होंठों का बार बार भींचना वो महसूस कर रहा था। उसके चेहरे से नागवारी महसूस की जा सकती थी। वो उसकी हिरनी जैसी खौफज़दा आंखों को देख मध्यम सा मुस्कुराया। अशनाल का दिल डूबने लगा, ये सोचकर कि उसके कुशादा चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट अशनाल के लिए कितनी जानलेवा थी। वो नज़रों का रुख ही फेर गई, मुकम्मल तौर पर घबरा गई थी और उस शख्स को अपनी तरफ देखता देख रोना भी भूल गई थी। लगता है अभी तक खफा हो मुझसे। सॉरी इशू यार, मैं परेशानी और गुस्से में आकर कभी कभी बिल्कुल हर्ट कर देता हूँ। वो रात वाले वाक़ये के बारे में कह रहा था। अशनाल बख को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो ऊंची खड़ी नाक, अपने वक़ार को हमेशा बुलंद रखने वाला, कभी ना झुकने वाला, वो कमाल की जाज़बियत और मकनातीसियत रखने वाला, जिसे किसी के भी हवासों पर छाने के लिए राई के दाने बराबर भी मेहनत ना करनी पड़ती थी। एक पल को तो अशनाल बख खुद पर नाज़ा हुई कि वो उस आम सी लड़की से माफ़ी मांग रहा था, उसके सामने झुक रहा था, उसकी खातिर उसके पास नीचे ज़मीन पर बैठा था, जो अपने लिबास पर हल्की सी गर्द भी ना लगने देता था। अशनाल बख को चंद लम्हे अपनी खुशबख्ती पर यकीन ही नहीं आया कि रोशनाल बख्त उससे सॉरी कर रहा है। उसकी नज़रें खुद पर जमी देख अशनाल का दिल ऐसे फड़फड़ाने लगा कि जैसे बाहर निकल निकल कर मचल जाने को बेताब हो। वो साकित बैठी उसी को देख रही थी। माफ़ नहीं करोगी अपने सुपरमैन को? वो कहकर उसके सुर्खी ज़्यादा गालों पर आती लट को पकड़कर हल्के से अपनी उंगली पर लपेटते बोला।
अशनाल सहम कर थर थर कांपने लगी। वो हवास बाख्ता हो गई थी क्योंकि उस शख्स ने नरमी से कभी उसकी तरफ खुद से पेशरफ्त नहीं की थी कभी, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उसे झुकाने के लिए नर्म देवता बन रहा था। अपनी ठोड़ी पर उसके हाथ का लम्स महसूस करती वो वहशत ज़दा सी हुई। उसका दिल किया वो धाड़े मार मार कर रोए। उसकी लंबी झुकी पलकें सरसराने लगी। इतना डर क्यों रही हो यार, शोहर हूँ तुम्हारा, रिलैक्स हो जाओ। वो उसे ऐसे मुखातिब कर रहा था जैसे वो उसकी पुरानी आशना रही हो। वो हर लम्हा डर रही थी, कांप रही थी। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को और मेरी इनोसेंट वाइफ ही इतनी हसीन और दिलकश है, मुझे आज पता चला। वो उसके गाल पर धीमे से हाथ रखते हुए बोला, लेकिन उसके इस धीमे से लहजे में वारफ्तगी की आंच फूट रही थी तो जिससे उसकी जान पर बनने लगी। वो उसकी दीवानों जैसी वारफ्तगी देखकर खुश होने की बजाय उसे मज़ीद हरासा करने लगी। वो रूहान सी हो गई। ये तवज्जो, ये वारफ्तगी, ये पुरसहर कुर्बत, उसका नर्म सा लहजा। वो तो शुरू से उसके नर्म लहजे की दीवानी थी, उसके लहजे पर जान देती थी। वो उसका सुपरमैन था। वो सुपरमैन से उसका शोहर बना था। सुपरमैन से शोहर बनने का सफ़र इश्नाल के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे था। वो टूट गई थी। उसका हर लफ्ज़ आतिशी था उसके लिए। उसका लहजा जिसने उसे लम्हा लम्हा तोड़ा और बखेरा था, उसको रेज़ा रेज़ा किया था। अब वो क्यों सुपरमैन बन रहा था? अभी तो वो तन्हाई और महरूमियों की आदी होने जा रही थी। फिर क्यों वो सितमगर उस पर मेहरबानियाँ फरमा रहा था? फिर क्यों वो अब्रे रहमत बनकर बरसने को तैयार था? वो क्यों ऐसा बनकर उसके पुराने ज़ख्मों से टांके उधेड़ रहा था? वो उसको सवाली बने देख रोने लगी। वो ऐसा कब चाहती थी कि रोशनाल अपनी मोहब्बत का खाली कशकोल लेकर उसके सामने ऐसे गदागरों की तरह बैठा हो। वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कुछ। अच्छा बताओ तो रो क्यों रही हो? वो फिर से उसकी ठोड़ी को ऊंचा करते सहरनशी लहजे में बोला, अगर सच बताया तो आप मारेंगे। वो कांपते लहजे में भर्राई आवाज़ में बोली, और मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ कि अपनी मासूम सी बीवी को मारूंगा? वो वही नर्म लहजा लिए जज्बों से भरपूर आवाज़ में बोला था। वो फिर से बेचैन हुई। उसकी ये वारफ्तगी उसे वहशत में डाल रही थी, लेकिन उसने जवाब देना चाहा कि वो शख्स उससे दूर ही रहे। वो ना क्या? आगे भी बोल दो इशू यार। वो उसके हकलाकर बोलने पर बोला था। वो ना मेरे बैग में बॉटल पड़ी थी, बॉटल का ढक्कन खुल गया और मेरी रोल नंबर स्लिप गीली हो गई। वो बमुश्किल रोते हुए बोली, जबकि उसकी बात सुनकर रोशनाल बख्त ने पहले तो सुकून की सांस ली, फिर बोला, ईशू यार तुम सच में पागल हो। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे दिल में इतने बड़े बड़े वसवसे डाल दिए। यार ऐसे तो बीवियां अपने शोहरों को उनके अब्बा बनने की खुशखबरी में इतना सस्पेंस में नहीं डालती जितना तुमने सस्पेंस क्रिएट किया था। वो पहले तो उसकी बात पर सूख पड़ी, लेकिन फिर खफा हुई जबकि अशनाल उसके चेहरे पर उतरते कोसे कज़ा के रंग देखता महसूस हुआ था। ये आपके लिए ये आपके लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरा आज लास्ट पेपर है। मैम ने पेपर देने से पहले मुझे बाहर निकाल देना है। वो हाथ की पुछ से आंसू साफ करती सिसकी लिए रोती हुई बच्ची ही लग रही थी उसे। अच्छा दिखाओ कहाँ है रोल नंबर स्लिप? उसके आंसू देखता वो नर्म लहजे में बोला था जिसकी अशनाल बख्श शुरू से दीवानी थी। वो बैग से कांपते हाथों से निकालने लगी स्लिप और उसे पकड़ाई। बैग उसके पास ही पड़ा था। रोल नंबर स्लिप गीली थी पर ख़राब नहीं थी। उसकी हालत ज़रूर ख़राब थी पर इतनी भी नहीं। रोशनाल ने सर पर हाथ मारा और उसकी अकल पर अफसोस किया। सीरियसली तुम इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा रो रही हो? एक बैन करने की कमी रह गई है। ऐसा तो तुम मेरे मरने पर नहीं रोगी जितना तुमने इस शीट के लिए आंसू बहा दिए। आखिर कब बड़ी होगी तुम? जब उसके हल्के से मजाक से अशनाल की रूह फना हुई, भल भल आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। आज सच में रोशनाल हाकिम वक्त उसके लिए बहुत बेरहम साबित हुआ था। यानी वो अपनी मौत का जिक्र करके उसे बेमौत मार रहा था। वो चंद पल सांस लेना भूल गई। उसका दिल धड़कना भूल गया था उसकी इस बात पर। चलो अब फिर से रोना किस बात पर शुरू हो गया? कुछ नहीं होगा ईशू, मैं इसे अभी सही कर देता हूँ। स्त्री कहाँ है बताओ? उसके दर्द से वो नावाकिफ था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत की बात करके उसे अजियत और वहशत में धकेल गया था। उसकी ये बात छोटी सी थी, लेकिन अशनाल बक के लिए ये बात बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी थी। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा, बस आपकी नफ़रतों में दबे कागजी रिश्ते तक आपकी बीवी हूँ। अगर आइंदा आपने मुझे बच्चा कहकर बुलाया तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कोई शक नहीं, बीवी तो हो तो मेरी ना, इसलिए मेरे लिए मेरा बच्चा हो, मासूम सा। और यकीन मानो तुम्हारे साथ रहकर ऐसे लगता है जैसे मैं बच्चे को ही किसी को ट्रीट कर रहा हूँ। उस वक्त नहीं लगा था जब मेरी ज़ात को गाली बना दिया था आपने? अब आप ये कहने का हक खो चुके हैं। वो फिर से तल्ख हुई और रोने लगी। अच्छा सॉरी। वो कान पर हाथ रख के माफ़ी मांग रहा था।
जाएं, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, वो नरोटे लहजे में कहती उसके बाजू पे मुक्का मार गई। रोशनाल हंसा और हंसता चला गया और फिर हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए और खुद उठा। उठो, हाथ बढ़ाया था, जबकि अशनाल ने उसका फैला हाथ देखा। कुछ देर सोचती रही, फिर उठ खड़ी हुई। वो उसे साथ टेबल पर लाया और हल्की सी इस्त्री गर्म करके 1 मिनट में ठीक कर दी स्लिप। जबकि वो दिल में उसकी मशकूर हुई पर बज़ाहिर कुछ नहीं बोली। कोई और हुक्म है मेरे आका? वो झुककर सर को हाथ पर रखता सीने तक लाते हुए दूसरा हाथ बोला। वो मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन खुद कराऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं फिर उसने उसे क्वेश्चन करवाए तो उसने सुकून की सांस खारिज की। वाकई वो चैप्टर उसे समझ आ पाया था। जाओ रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। अभी है तो काफ़ी टाइम, पर जल्दी चलो, मैं भी फ्रेश हो लूँ। वो कहकर उसका गाल थपथपाता चला गया। अशनाल ने उसको जाते देख हर चीज़ समेटी, लेकिन कुछ फॉर्मूला तैयार करके वो उठी और खुद शावर लिया था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर गीले बालों को ड्राई कर रही थी। उसके सिल्की बाल कंधों पर लहरा रहे थे। आम हालात में वो ड्राई नहीं करती थी, लेकिन इमरजेंसी थी। उसे चलाना भी नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। अभी उसी को उल्टा सीधा करके देख रही थी जब वो खुशबुएं बखेरता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसको देख उसके हाथ कांपने लगे। वो दुपट्टा उठाने के चक्रों में थी। उसने दुपट्टा तो ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अपने गिर्द फैला लिया। अभी वो सर पर करती कि रोशनाल बीच में उसका हाथ पकड़ गया। रोशनाल ने उसे खास नज़रों से देखा, क्योंकि वो बहुत कम बगैर दुपट्टे के उसे देखता था। उसकी नज़रें खुद पर जमी देख वो खामखा कन्फ्यूज़ हो गई। वो नज़रें ही ऐसी होती थीं कि वो मुख्तलिफ रंगों में नहा जाया करती। वो नज़रें दिल धड़काने का सबब बनती थी। वो कहाँ कहाँ किस किस मकाम पर खुद को मजबूत रखती। वो शख्स उसकी मजबूती पल में तोड़ देता, लेकिन उसकी नज़रें कभी कभी मेहरबान थी। शादी के बाद भूले बसरे से भी उसे याद नहीं पड़ता कि उसने कभी मेहरबान नज़रों से उसको देखा भी हो। वो उसको अपने पीछे खड़े देख हवास भागता हुई, हाथों में लर्जिश पाते देख वो उसके हाथ से ड्रायर ले गया और खुद ड्राई करने लगा। उसके बाद मैं खुद कर लेती हूँ, वो होले से बोली। जब पकड़ना ही नहीं आ रहा मेरी बीवी को तो कैसे कह रही हो कि खुद कर लेती हूँ? उसके मीठे से तंज पर उसने नज़रें झुकाई थी, क्योंकि वो उसके मुकाबिल खड़ा होकर उसके बाल ड्राई कर रहा था। वो उसके सामने खड़ा कोई मजबूत पहाड़ रख रहा था। वो होले होले बाकायदा कांप रही थी। उसको कांपता देख उसे हल्के से लेकर चलता उसने बेड पर बिठाया और काम महारत से करने लगा अपना। ये वाला शैम्पू अब यूज़ मत करना, बाल ख़राब हो जाएंगे। वो उसके नीचे थोड़े थोड़े रूखे बालों को देख कर बोला था, जबकि ईशू को वो पल पल हैरान कर रहा था। वो हैरान थी कि वो उस पर कितनी नज़र रखता था। कोई हेयर बैंड, कैचर वगैरह? उसने ड्राई करके कैचर का पूछा। कोई जवाब ना पाकर खुद ड्रेसिंग से कैचर उठा लाया। अब ठीक है ईशू, हरी आप जल्दी उठो, फिर निकलना है। जबकि वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और अपने बाल सेट करने चाहे, मगर वो मुसलसल कंफ्यूज हो रही थी और ऐसा कर नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से गाउन पहना। अब वो मुतमईन थी। अभी वो सेट कर ही रही थी गाउन जब वो फिर से उसके साथ आ खड़ा हुआ। वो स्याह गाउन में थी। वो दोनों साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। इस बात की गवाही आईने ने दी थी। अशनाल ने एक दफ़ा फिर नज़र उठाई। वाइट सूट में नक्सक से तैयार, वह चाहत व मर्दानगी का शिकार, घड़ी हाथ पर बांधे, सब खूबियों से बढ़कर उसकी आशनाई ने उसकी आंखों में एक अछूता और मुनफरिद एहसास पैदा कर दिया था, और एहसास भी ऐसा जो भस्म करने की भरपूर सलाहियत रखता था। अशनाल की आंखों में भी मोहब्बत की धुन छाने लगी। वो उस शख्स से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती थी, ना उसकी मोहब्बत से और ना उसकी नफ़रत से। वो आगे बढ़ा और उसका हिजाब सेट करने लगा। जब उसके गाल से उसकी उंगलियां टच हुईं, उसका लम्स उसे कपकपाने पर मजबूर कर जाता। पिन दो मुझे। उसको देखा जो छुई मुई सी खड़ी थी। उसकी बात सुनती वो अपना पिन वाला हाथ आगे कर गई, जिसमें 3-4 पिन्स थी। रोशनाल ने सारी पिन्स लेकर 2-3 अपने मुंह में दबाई और उसका हिजाब सेट करने लगा। हिजाब सेट करके उसे ठीक लगा। अब परफेक्ट लग रही हो वाइफी। अंगूठे और उंगली को गोल शेप देकर उसने सराहा। उसे अपना ख्याल रखता देख उसकी आंखों में धुन छाने लगी। उस शख्स से मोहब्बत कम नहीं पड़ी थी। आप जाएं, मैं आ रही हूँ, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। ओके, वो ये कहकर मुतबस्सुम सा मुस्कुराया। उसकी आंखों की बदलती रंगत थी उसकी निगाहों में। आज उसने मुकम्मल तवज्जो से उसे देखा। वो उसकी नफ़रत और बेगानगी में भी उससे नफ़रत नहीं कर सकती थी। फिर उसकी तवज्जो और प्यार से कैसे ना पिघलती। वो चला गया था, जबकि वो पीछे उसके सहर में खड़ी नकाब में मुस्कुराई। वो सच कहता था। वो शख्स हरगिज़ वाकई बुरा नहीं था। उस पर गुजरे हालात बुरे थे जो उसे तल्ख बना गए, वरना ईशू का सुपरमैन बुरा कैसे हो सकता है?